4 जून 1947 से दोनों देश भारत और पाकिस्तान में बंटवारे की रूपरेखा बनने लगी थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए 73 दिनों का समय दिया गया था। इस बंटवारे में कैश, चल संपत्ति, रेल, सड़क, नदी, सेना तक का बंटवारा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐतिहासिक घटना के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का विभाजन 1947 में ब्रिटिश भारत का बंटवारा हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना रही है, जिसने नए भारत और पाकिस्तान की स्थापना की। इस घटना के राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय परिणामों का विश्लेषण आज हम करेंगे। नंबर फर्स्ट, भारत का विभाजन कैसे हुआ। ब्रिटिश शासन के अंत के समय भारत में बढ़ती राजनीतिक और सामाजिक असमानता के कारण विभाजन की मांगें उठने लगी। ब्रिटिश शासन के अंत के समय भारत में बढ़ती राजनीतिक और सामाजिक असमानता के कारण भारत का विभाजन एक महत्वपूर्ण घटना बन गया। विभाजन की मांगें उत्पन्न हुई जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने तेजी से महत्वपूर्णता प्राप्त की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राजनीतिक और सामाजिक विवाद ने विभाजन के संकेत दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कुछ महत्वपूर्ण विवाद हुए, जो मुस्लिम समुदाय के स्वतंत्रता के लिए अलग देश की मांग करने लगे। इसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारत का विभाजन किया गया, जिससे नए भारत और पाकिस्तान नामक दो देश अलग राष्ट्र बने। विभाजन की प्रक्रिया में अत्यंत उत्पीड़न, हिंसा और विवादों का सामना किया गया। लाखों लोगों की हत्या हो गई और लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इस विभाजन के दौरान लोगों के बीच धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर बंटवारा किया गया, जिसने देश को आंतरिक और सामाजिक द्रोह की हिंसा में ले लिया। इस घटना के राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय परिणाम भारतीय इतिहास में एक अविरल असर छोड़े। यह एक ऐतिहासिक घटना है जो हमें यह दिखाती है कि असमंजस, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक विभाजन के परिणाम अत्यधिक भारी हो सकते हैं। नंबर 2, विभाजन की प्रक्रिया In the कैसे। immediate aftermath of the partition, the political fallout was significant. The creation of India and Pakistan led to the establishment of a binary relationship that has influenced the political, military, and economic relations between the two nations. This has often resulted in tense situations and has entrenched disputes between the two countries. One of the most significant political consequences was the genesis of border disputes, the most critical of which revolved around the region of Kashmir. The contention over the sovereignty of Kashmir has remained a constant source of tension between India and Pakistan, even leading to wars between the two nations. The partition also exacerbated the issue of terrorism. The religious and social divisions in Pakistan, which had their roots in the partition, fueled conflicts that escalated into terrorism. This, in turn, increased the number of terrorist attacks between India and Pakistan, further straining their relations. From a social perspective, the partition brought about profound changes in the fabric of society. The principle of secularism was challenged as disagreements and conflicts between religious communities increased, leading to social unrest. The mental health of individuals was also severely affected during the partition, with many feeling helpless and insecure. The partition also heightened the issue of identity among communities. Due to differences in religion, language, and culture, conflicts among divided communities escalated, disrupting social harmony. The partition had severe human rights implications as well. Emergencies were declared multiple times in both India and Pakistan post-partition, often leading to human rights violations and curtailment of freedoms. The partition resulted in the displacement of millions of people, leading to economic, social, and psychological issues. The plight of the Rohingya Muslims, which was a consequence of these partition, highlighted severe human rights issues, with them being denied their rights and their situation being largely overlooked.
In summary, the partition of India and Pakistan was a historical event that has had long-lasting political, social, and human rights consequences. It has shaped the relationship between the two nations and has had a profound impact on the lives of millions of people. It is crucial to learn from this historical event and strive to build stronger, more harmonious societies that uphold human rights. This exploration of the consequences of the partition provides a lens to understand the past, which in turn can guide us in shaping a better future. की राजनीतिक परिणाम। भारत और पाकिस्तान के गठन के बाद कई राजनीतिक परिणाम हुए जिनका विश्लेषण निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट, द्विघात्मक संबंध। भारत और पाकिस्तान के गठन के बाद द्विघात्मक संबंध विकसित हुए जिसने दोनों देशों के बीच राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप कई बार तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हुई और दोनों देशों के बीच विवाद स्थापित किए गए। नंबर 2, सीमा विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच कई सीमा विवाद हुए जिसमें कश्मीर के मसले सबसे महत्वपूर्ण थे। कश्मीर के स्वाधीनता पर पाकिस्तान और भारत के बीच बार बार तनाव बना रहा जो दोनों देशों के बीच युद्धों के संदर्भ में भी उत्पन्न हुआ। नंबर 3, आतंकवाद। विभाजन के बाद पाकिस्तान में धार्मिक और सामाजिक विभाजन की स्थिति से उत्पन्न हुए संघर्षों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकी हमले की घटनाओं की संख्या बढ़ी जिसने दोनों देशों के संबंधों को और भी तनावपूर्ण बना दिया। राजनीतिक दृष्टि से भारत और पाकिस्तान के गठन के बाद कई संघर्षजनक समस्याएं उत्पन्न हुई जो दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रभावित करती है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सशक्त और सहमत नीतियों की आवश्यकता है ताकि स्थिति में सुधार किया जा सके और सुरक्षित और स्थिर संबंध बनाए जा सके। नंबर 4, सामाजिक परिणाम। भारत के विभाजन के बाद कई सामाजिक परिणाम हुए जो समाज में गहरा प्रभाव डाले। पहला, धर्मनिरपेक्षता। विभाजन के परिणाम स्वरूप धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में समस्याएं बढ़ी। धार्मिक समुदायों के बीच असहमति और आत्मसत्ता बढ़ गई जिसने सामाजिक संघर्षता को बढ़ाया। नंबर 2, लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। विभाजन के समय लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। अनेक लोगों को असहाय और असुरक्षित महसूस होने लगा जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता रहा। समुदायों के बीच विशेषता की समस्या। विभाजन के बाद समुदायों के बीच विशेषता की समस्या भी बढ़ गई। धर्म और भाषा और संस्कृति विभिन्नता के कारण विभाजित समुदायों के बीच संघर्ष बढ़ा जो सामाजिक सामरिकता को बाधित करता रहा। विभाजन के इन सामाजिक परिणामों ने भारतीय समाज को गहरे असहमति और विभाजिता के धारावाहिक सामने रखा। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए समाज में सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता और आपसी समझ की आवश्यकता है। एक समृद्ध और एकीकृत समाज की दिशा में एकदम बढ़ाना महत्वपूर्ण है। नंबर 5, मानवाधारिक परिणाम। विभाजन के बाद कई मानवाधारिक परिणाम हुए जो समाज में गहरा प्रभाव डाले। पहला, आपातकाल। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में कई बार आपातकाल लगाए गए। इसके परिणाम स्वरूप लोगों की आज़ादी को कई बार संकट में डाल दिया गया और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। नंबर 2, विस्थापित लोगों की समस्या। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को अपने घरों से निकाला गया और उन्हें अनजान और असहाय स्थिति में छोड़ दिया गया। विस्थापित लोगों को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। नंबर 3, रोहिंग्या संघर्ष। विभाजन के परिणाम स्वरूप रोहिंग्या मुसलमानों के संघर्ष ने मानवाधिकारिक समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया और उन्हें उनकी स्थिति में गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। विभाजन के इन मानवाधिकारिक परिणामों ने सामाजिक समृद्धि और विकास को प्रभावित किया जिससे समाज में असमानता और दुर्भाग्य बढ़ा।
इन समस्याओं का समाधान करने के लिए मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए समाज को समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाने के लिए समर्थन और कार्रवाई की आवश्यकता है। कंक्लूजन। भारत का विभाजन एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। भारत का विभाजन एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसके परिणामों ने देश को लाखों लोगों के जीवन पर अविरल असर डाला। हमें इसके आधार पर अपने भविष्य की दिशा में सोचना चाहिए ताकि हम ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को दोहराने से बचें। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।